Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about gendered role in society. This topic is useful for essay writing, GS paper 1 Indian society and GS paper 4 ethics and integrity perspective. तो डायरेक्टली तो नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे जो आइडियाज हम डिस्कस करेंगे दैट कैन बी यूजफुल इन सेवरल एरियाज. You see, let us first of all understand what is the meaning of gendered role in society. Gendered role in society का मतलब है different social expectations from different sexes in society. मेल और फीमेल से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस जो समाज के होते हैं उसको कहा जाता है जेंडर्ड रोल इन सोसाइटी. Expectations in the form how to act, how to talk, dress, conduct oneself in social places. ये सब कुछ मेल से अलग तरीके से एक्सपेक्टेड होता है, फीमेल से अलग तरीके से एक्सपेक्टेड होता है समाज में. इसी को कहा जाता है जेंडर्ड रोल इन सोसाइटी. अब ये जेंडर्ड रोल इन सोसाइटी कैसे आया है, इसकी क्या ओरिजिन है, इसको लेकर के अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं. लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड नोशन है वो है कि स्टार्टिंग से ही मेन वेयर एंगेज्ड इन हंटिंग बिग एनिमल्स. दैट इज व्हाई men have been evolved in separate manner as compared to women who engaged into household activities like gathering fruits, firewood and nurtured kids. तो विमेन की ज़रूरतें या विमेन की एक्टिविटीज़ अलग रही हैं, इसीलिए विमेन की इवोल्यूशन अलग तरीके से हुई है एज कंपेयर टू मैन. और इस कारण से अब दोनों का बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है. विमेन के फिजियोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग हैं एज कंपेयर टू मैन. इसीलिए दोनों के रोल भी अलग हैं समाज में, दोनों के एक दूसरे कंडक्ट करने के खुद को समाज में वो भी अलग हैं. सरल भाषा में कहें तो इवोल्यूशन इज biological evolution is different and that is why the role or expectation is different. That is the main accepted notion behind gendered role in society. इस आइडिया को सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से देने वाले 1960s में दो इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, रिचर्ड बॉर्से-ली एंड एरविन डेवोर. They argued that hunting of animals drove a lot of evolutionary development for men. Likewise, activities performed by women led to evolutionary changes in women and made them suitable for household work. तो आज के डेट में जिस तरीके से men का evolution हुआ over a period of time because of hunting, they are more suited to do the outside activities. जिस तरीके का evolution women का हुआ है because of the work they have been doing in the past, they are more suited to take care of the household activities. इस थ्योरी को नाम दिया गया है मैन द हंटर थ्योरी. सिंस मैन हैज बीन हंटर, दैट इज व्हाई मैन फिजियोलॉजिकल इवोल्यूशन हैज बीन डिफरेंट. इसी पे ये दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो हैं ही, रिचर्ड बॉर्से-ली एंड एरविन डेवोर. इसी ये सब देखिए, जितना कंक्रीट तरीके से आप बातें लिखेंगे उतना बेहतर आपको मार्क्स मिलेंगे एस्से में. तो मैन द हंटर थ्योरी पे नेशनल ज्योग्राफिक का एक अच्छा आर्टिकल आया था 2007 में. वो कहता है कि मच ऑफ आवर एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू मैन द हंटर थ्योरी वाज रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन फॉर हंटिंग. देखिए, हंटिंग वाज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन एज पर दिस मैन द हंटर थ्योरी. अब हंटिंग के लिए मैन हैड टू इवॉल्व, देयर एनाटॉमी चेंज्ड. फॉर एग्जांपल, इन सवाना ग्रासलैंड मैन हैड टू stand tall in order to see where the big animals, जिसको game कहा जाता था, they are located. Men had to make weapons, use it. Over a period of time, men developed more barbaric psychology also, क्योंकि hunting के लिए you need to have barbaric psychology, and that suited men to engage into hunting over a period of time. तो यही कहता है man the hunter theory. It concludes कि man engaged into hunting activity that evolved them and made them more suitable to take up outside activities, like women
engage into household activities that lead to passive evolution of women and that made them more suitable for taking up household activities now. तो जो भी जेंडर्ड रोल है समाज में कि विमेन घर के काम देखेंगी, मेन बाहर के काम देखेंगे, इसको फेमिनिस्ट्स डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखते हैं। दे कंडेम इट एज डोमेस्टिकेशन ऑफ विमेन, जबकि कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको देखते हैं एज ए वेरी नेचुरल और बायोलॉजिकल फैक्टर विच इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन ऑफ मेन एंड वीमेन विच हैज हैपेंड इन डिफरेंट मैनर। इस थ्योरी को नाम दिया गया मैन द हंटर थ्योरी। एक बार इसको मैं ब्रीफली रिवाइज करा देता हूं। मैन द हंटर थ्योरी सेज कि देयर इज जेंडर्ड रोल इन सोसाइटी, मेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द हाउस आउटसाइड एक्टिविटीज व्हाइल वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एक्टिविटीज। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस कोई डिस्क्रिमिनेशन के कारण नहीं है एज पर दिस मैन द हंटर थ्योरी। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इवोल्यूशन। विमेन बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजी, जिस तरह की उनकी शरीर की बनावट है या जिस तरीके की उनकी बॉडीली एक्सपेक्टेशंस है, दे हैव टू गिव बर्थ टू चाइल्ड बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस एंड बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजी विच हैज बीन स्लाइटली सॉफ्ट। विमेन का इवोल्यूशन थोड़ा पैसिव तरीके से हुआ है विच मेक्स देम सुटेबल फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, इसीलिए उनको हाउस होल्ड एक्टिविटीज दिया गया है बिकॉज दे आर मोर सुटेबल फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। जबकि वहीं मेन ड्यू टू देयर सुटेबल फिजियोलॉजी एंड बारबेरिक साइकोलॉजी। सुटेबल फिजियोलॉजी कैसे बना? बिकॉज वो हंटिंग करते रहे इतने सालों से, और हंटिंग करते रहे तो थोड़ी बारबेरिक साइकोलॉजी भी हो गई है। इस कारण से उनका एक्टिव इवोल्यूशन हुआ है विच मेक्स देम बेटर सूटेड फॉर आउटसाइड वर्क। तो मुद्दा ये है कि औरतें घर का काम देखें और मेन बाहर का काम देखें, इसको फेमिनिस्ट डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन की तरह देखते हैं, जबकि मैन द हंटर थ्योरी देने वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको नेचुरल फिनोमिना की तरह देखते हैं, रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब मैन द हंटर थ्योरी को हाल फिलहाल में चैलेंज किया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट सारा लेशी एंड बायोलॉजिस्ट कारा ओकोबॉक ने। उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में, एक पेपर पब्लिश किया है इन दिस जर्नल अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में, जिसमें उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और बायोलॉजिकल एविडेंसेस टू चैलेंज दिस मैन द हंटर थ्योरी। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर क्या बातें कर रहे हैं, बट यही सबसे एस्से वगैरह अच्छा होता है। एस्से में अगर आप ऐसे शुरुआत करें, इट कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर, राइट। आपको मैं कुछ ऐसे लिख करके भी दिखाऊंगा इस आइडियाज पे, फेमिनिस्ट किस तरीके से सोचते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस तरीके से सोचते हैं। तो दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट सारा लेसी एंड कैरा ओकबोक, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कि इट वेर नॉट ओनली मेन बट वीमेन ऑल्सो हु इंगेज इन टू हंटिंग अर्लियर। उन्होंने बायोलॉजिकल आर्गुमेंट देते हुए कहा है कि देखिए, विमेन में मोस्टली पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन विमेन एज कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन इन मेन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण विमेन के अंदर इंड्योरेंस एक्टिविटी ज्यादा होती है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो मेन में पाया जाता है दैट अलाउज मेन फॉर शॉर्ट पावरफुल बर्स्ट टाइप एक्टिविटीज, मतलब शॉर्ट टाइम में कुछ पावरफुल एक्टिविटी करना है, तो देयर मेन आर बेटर सुटेड बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। बट इंड्योरेंस के लिए एस्ट्रोजन इज बेटर सुटेड हार्मोन, and that is why women are having higher endurance as compared to men, long term action कोई करना है तो। and because of this estrogen factor, women were also an important part in hunting in earlier times। इसको साबित करने के लिए इन्होंने आर्कियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं कि अगर हम अभी से 35,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक की अगर हम लोग बरियल ग्राउंड्स को देखें, तो वहां पे मेन और विमेन को एक तरीके से ही दफनाया जाता था, एक तरीके से बेरिड किया जाता था, दोनों के साथ डेड बॉडीज के साथ, चाहे मेन की डेड बॉडी हो या विमेन की डेड बॉडी हो, उसके साथ कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे। वो आर्टिफैक्ट्स मोस्टली हंटिंग टूल्स हुआ करते थे। विमेन के भी डेड बॉडी के साथ हंटिंग टूल्स के ही आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे, अभी से लेकर के लगभग 35,000 से लेकर के 10,000 साल पहले तक।
तो इसका मतलब ये है कि अगर विमेन के डेड बॉडीज के साथ भी हंटिंग टूल्स रखे जाते थे, इसका मतलब विमेन वेयर आल्सो हंटर्स टिल 10,000 ईयर्स अगो। पर 10,000 साल पहले हुआ क्या कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना हमने शुरू किया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के बाद हमने सेटल्ड लाइफ बिताना शुरू किया, सरप्लस ऑफ फूड होने लगा। तो छोटे से ही फील्ड से खाने की जितनी जरूरतें थी उससे ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा। तो फिर धीरे धीरे डिवीजन ऑफ लेबर किया गया, और डिवीजन ऑफ लेबर में men started to take up the outside activities while female were expected to take of the household activities because they were more close to children। और यहां से फिर एग्रीकल्चर की शुरुआत के बाद धीरे धीरे जेंडर्ड रोल शुरू हुआ है। तो ये पूरे आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि विमेन के बॉडी में फिजिकली ऐसा कुछ भी लिमिटेशन नहीं है that does not make them capable of taking of outside activities। Women physiologically are equally capable to take up outside activities as per this new paper। जो मैन द हंटर थ्योरी है, जो कहता है कि मैन ऐसे इवॉल्व ही हुआ है फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुआ है, साइकोलॉजिकली बारबारिक इमर्ज हुआ, दैट मेक्स देम सुटेबल फॉर टेकिंग अप ऑफ द आउटसाइड एक्टिविटीज। दिस मैन द हंटर थ्योरी इज नॉट करेक्ट। जो थोड़ा बहुत जेंडर्ड रोल शुरू हुआ है दैट इज आफ्टर राइज ऑफ एग्रीकल्चर, बट विमेन वेयर इक्वल पार्टिसिपेंट इन हंटिंग, that makes them equally evolved as far as their physiological factor is concerned or psychological factor is concerned। ये जो जेंडर्ड रोल है इसका दूसरे तरीके से अगर एप्लीकेशन देखिए तो जेंडर्ड रोल के हिसाब से विमेन आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर विच इज डिफरेंट फ्रॉम मेन। फॉर एग्जांपल, मेन आर नॉट सपोज टू क्राई while women are supposed to act like a lady, polite and all। so that means कि we are not allowed to act in natural manner। अगर किसी की रोने की इच्छा हो रही है तो वो रो सकता है, why should he not, but we are not allowed to। this itself highlights कि how gendered role in society has robbed us of our फिजिकल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम। और ये जेंडर्ड रोल है, इसके पीछे जो दी गई थ्योरीज हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। एंड जेंडर्ड रोल बेसिकली based on the concept of man the hunter theory has been recently challenged। ये सारी बातें अगर ध्यान रखेंगे तो ऐसे राइटिंग में काम आ सकता है। यहाँ पे बोर्ड वर्क मैंने दे दिया है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिचर्ड बोर्सेलॉ एंड इरविन डेवोन का नाम याद रखिएगा, इससे आंसर लिखने में आसानी होगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रैट होल माइनिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये न्यूज़ पिछले 17 दिनों से चल रहा था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि ये अच्छे तरीके से कंक्लूड हो जाए तब मैं इसको कवर करूं, इसीलिए आज मैं इसको कवर कर रहा हूं। क्या हुआ है मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार ब्रीफली बता दूं। देखिए, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है चार धाम महामार्ग परियोजना, जिसके अंतर्गत चार जो इम्पोर्टेंट सैक्रेड डेस्टिनेशंस हैं हिंदू धर्म के अंदर, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको कनेक्ट करने का प्लान था। चार धाम महामार्ग परियोजना में ऑल सीजन मोटरेबल रोड बनाने का प्लान है अंडर दिस चार धाम महामार्ग परियोजना। तो इसलिए ये रोड कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे। ऐसे ही एक रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान एक टनल बनाया जाना था, अ टनल बिटवीन दिस धारासू टू यमुनोत्री। यहाँ पे कहीं पे एक टनल बनाया जाना था जिसका नाम था सिलकयारा बैंड टनल, सिलकयारा बैंड टनल। ये टनल लगभग 4.5 किलोमीटर लॉन्ग होना था, लेकिन इस टनल के कंस्ट्रक्शन के दौरान विच इज ऑन नेशनल हाईवे नंबर 134, नेशनल हाईवे नंबर 134, दिस ईयर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओल्ड नंबरिंग पे जाएं तो नेशनल हाईवे नंबर 94, न्यू नंबरिंग से नेशनल हाईवे नंबर 134। तो ये टनल बन रहा था नेशनल हाईवे नंबर 134 पे। टनल बनने के दौरान ही ये जो सिलकियारा वाला ओपनिंग साइड है यहाँ पे कोलैप्स हुआ और ये टनल क्लोज हो गया, और अंदर में 41 वर्कर्स गॉट ट्रैप्ड। ये जो टनल कोलैप्स हुआ दैट हैपेंड ऑन दिवाली डे, और उस दिन से लेकर के आज तक इसके अंदर 41 वर्कर्स ट्रैप्ड थे। उनके पास खाने पीने की कुछ चीजें थीं जो समहाउ दे सर्वाइव्ड,
तो उनको रेस्क्यू करने का काम फिर शुरू किया गया। अलग अलग तरीके की कटिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन अलग अलग कटिंग इक्विपमेंट्स के कारण अलग अलग चैलेंजेस निकल करके आ रहे थे। कहीं कहीं ज़्यादा कोलैप्स हो जा रहा था, क्रैक्स डेवलप हो रहे थे। तो अल्टीमेटली अलग अलग कटिंग टेक्नोलॉजीज के बाद अंत में कुछ मीटर्स को काटने के लिए एम्प्लॉय किया गया एक टेक्निक को, जिसको कहते हैं हम लोग रैट होल माइनिंग। सम रैट होल माइनर्स वेर एम्प्लॉयड इन द एंड। रैट होल माइनर्स डिड द लास्ट कटिंग, फ्यू मीटर्स वेर लेफ्ट। उनको काफी बारीकी से कट करना था, जिसको कट किया रैट होल माइनर्स ने, और फिर इन 41 वर्कर्स को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया। तो यहीं से न्यूज में आ गया है रैट होल माइनिंग। तो रैट होल माइनिंग क्या होता है वो जरा देखते हैं। देखिए, इस तरह के छोटे छोटे होल्स बना करके अंदर से इंपॉर्टेंट मिनरल्स, स्पेशली कोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंदर से इंपॉर्टेंट मिनरल जैसे कि कोल को एक्सट्रैक्ट करना, इस तरह की माइनिंग एक्टिविटी को कहा जाता है रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग कोल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है इन स्टेट्स लाइक मेघालय। देखिए, मेघालय में क्यों इस्तेमाल किया जाता है रैट होल माइनिंग ज्यादा? क्योंकि मेघालय के अंदर जो कोल बेड सीम है वो काफी पतले हैं, बहुत नैरो है कोल बेड सीम। उसके लिए अगर कन्वेंशनल तरीके से माइनिंग की गई तो दैट विल नॉट बी इकोनॉमिकली वायबल, क्योंकि इतना ज्यादा आप माइनिंग करके, बिगर माइनिंग करके, कटिंग करके थोड़ा सा कोल निकालें, दैट डज नॉट मेक इट इकोनॉमिकली सेंसिबल। व्हाई? बिकॉज द कोल सीम इज एक्सट्रीमली थिन, सो ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड डज नॉट मेक इट इकोनॉमिकली वायबल। इसीलिए मेघालय के अंदर रैट होल माइनिंग होती रही है। बट रैट होल माइनिंग की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय किया जाता है इलीगल तरीके से, क्योंकि होल्स छोटे छोटे हैं। उसमें फिर वेल ग्रोन अप मैन को अंदर भेज पाना कठिन हो जाता है, बच्चे को भेजे जाता है और बच्चे फिर हाथ से होल निकाल निकाल करके ले आते हैं। अब ये समस्याएं थी रैट होल माइनिंग से रिलेटेड। चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय करता था। रैट होल माइनिंग में कोई साइंटिफिक तरीका तो ज्यादा इस्तेमाल हो नहीं रहा है, तो अक्सर नेचुरल डिजास्टर जैसे कि लैंडस्लाइड वगैरह हो जाते थे। रिवर पॉल्यूशन का भी समस्या था, क्योंकि रैट होल माइनिंग में जब माइनिंग किया जाता था तो मिनरल्स आसपास के जो हैं वो निकल करके रेनफॉल के कारण, रेनफॉल होता है तो ये मिनरल्स उस बरसा वो बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर के आसपास की नदियों में जाकर के मिल जाते थे। और रैट होल माइनिंग अनसाइंटिफिक तरीके से होती है, तो कई सारे मिनरल जैसे कि फेरस सल्फाइड वगैरह निकल आते थे इन माइन से। और ये फेरस सल्फाइड वगैरह बारिश के पानी के साथ मिल करके जाकर के ओशन में, रिवर में मिलते हैं, और इससे रिवर का पानी भी एसिडिक हो सकता है, होता भी रहता था। फॉर एग्जाम्पल, फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ विथ वाटर रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है। रिवर का वाटर एसिडिक हो जाता था बिकॉज ऑफ रैट होल माइनिंग। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ 2019 में, जब देखिए, ये मेघालय के अंदर रैट होल माइनिंग खूब सारी प्रैक्टिस की जाती है। वहां से फिर एक नदी निकल करके जाती है कोपली रिवर, विच इज लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। कोपली नदी का पानी एसिडिक होने के कारण, बिकॉज रैट होल माइनिंग इन मेघालय साइड, कोपली रिवर का पानी एसिडिक हो गया। और ये एसिडिक वाटर ने क्या किया कि कोपली डैम या कोपली प्रोजेक्ट के जो पाइपलाइंस हैं उसको कोरोड कर दिए। पाइपलाइंस जब कोरोड हुए, वो कमजोर हो गए, तो पाइपलाइंस बर्स्ट हो गए। दैट लेड टू डेथ ऑफ 4 पीपल। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ रैट होल माइनिंग। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में रैट होल माइनिंग पे पूरी तरह से बैन लगा दिया था। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रैट होल माइनिंग के ऊपर से बैन को लिफ्ट किया। सुप्रीम कोर्ट अलाउड रैट होल माइनिंग ओनली इफ इट इज प्रैक्टिस्ड इन अ साइंटिफिक मैनर अंडर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। तो इस प्रॉपर कानून के अंतर्गत साइंटिफिक मैनर में प्रैक्टिस किया जाए, अगर उसमें कोई चाइल्ड लेबर ना एम्प्लॉय किया जाए, रिवर वाटर पॉल्यूशन ना हो, इसका ध्यान रखा जाए, अगर ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाए तो रैट होल माइनिंग की जा सकती है।
अंडर सम स्पेशल प्रोविजन अंडर स्पेशल रेगुलेशन। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में। अभी देखिए रैट होल माइनिंग मेघालय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है। जब से इस पे बैन लगा था तब से मेघालय के अंदर एक अनरेस्ट सा सिचुएशन था। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो सकता है कि रैट होल माइनिंग को प्रोहिबिट किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ दूसरे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ढूंढे जाएं लोगों के लिए। और अगर रैट होल माइनिंग प्रैक्टिस करना है तो फिर प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट प्रैक्टिस की जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो रैट होल माइनिंग से रिलेटेड पहले हम लोगों ने देखा उत्तराखंड का 4 धाम परियोजना, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो धारासू से लेकर के यमुनोत्री वाला जो रोड है, सिलक्यारा टनल, नेशनल हाईवे नंबर 134, ये जरूर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिखना भूल गया। वो कोलैप्स हो गया काफी दिनों तक कटिंग करने के बाद अंत में एम्प्लॉय किया गया रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग की ये सब समस्याएं हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अच्छा आर्टिकल है, द हिंदू में आया है। कभी कभार सिर्फ साइंस एंड टेक से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, वो सीधा सीधा मेंस में भी पूछा जा सकता है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आर्टिकल डिस्कस करता है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कैसे काम करता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इज मेड अप ऑफ थिक ग्लास स्ट्रैंड, ऐसे ग्लास का बना रहता है। और फिर कैसा है, इसमें से एक साइड से लाइट सिग्नल भेजा जाता है। दिस लाइट सिग्नल बेसिकली इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ डेटा, डिजिटल डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो कॉल, टेलीफोन कॉल्स, etc. From one side, the cable, optical fiber cable carries a beam of light which carries a lot of digital data. ये बीम ऑफ लाइट जब जाकर के टकराता है तो इसको इस एंगल पे इंसिडेंट कराया जाता है कि ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के वापस से इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर ही रह जाए। क्योंकि आपको पता है कि व्हेन लाइट ट्राइज टू मूव फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, देन इट रिफ्रैक्ट्स अ लिटिल बिट, थोड़ा सा मुड़ता है, राइट, इट बेंड्स अ लिटिल बिट। लेकिन अगर ये मीडियम इतना डेंस हो कि लाइट मुड़ते 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 पूरी तरह से मुड़ जाए, इस फिनोमेना कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंदर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये जो ग्लास है, ये ग्लास इज वेरी वेरी डेंस, दैट लीड्स टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर ये लाइट यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस तरीके से ये लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करता है इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज कैरिंग अ बीम ऑफ लाइट, विच बीम ऑफ लाइट इज हैविंग डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ इमेजेस, वीडियो एंड टेलीफोन कॉल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 चीजें होंगी। ट्रांसमीटर का काम होगा कि डेटा, डिजिटल डेटा को लाइट बीम में कन्वर्ट करे और फिर उसको एस एंगल पे ट्रांसमिट करे, ताकि वो लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करे। ऑप्टिकल फाइबर तो होगा ही इस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में, ऑप्टिकल फाइबर इज नीडेड। और दूसरे एंड पे रिसीवर होना चाहिए, वो इस लाइट बीम को रिसीव करेगा और फिर से वापस से डिकोड करेगा इन द डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल डेटा। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम या ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए किया जा सकता है? लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई से लेकर के अंडमान निकोबार तक अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन अंडमान निकोबार। टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिकल साइंस में एंडोस्कोपी के लिए, एंडोस्कोपी, लेजर टेक्नोलॉजी इनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, इन सब में इनका इस्तेमाल हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको दे रखा है। इस तरह के सवाल सीधे सीधे मेंस में दिख जाते हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जितना भी मैंने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट इट, यूज योर न्यू आइडियाज, मेक मैप्स ऑल्सो। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये मैप भी बना दीजिएगा। The next article is about International Sugar Organization. This topic is important from prelims exam point of view. देखिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है।
दुनिया के 88 देश मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। 88 देश दुनिया के इसके मेंबर हैं, बट टुगेदर दे आर 87% ऑफ वर्ल्ड शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री। इसको बनाया गया 1992 में अंडर इंटरनेशनल शुगर अग्रीमेंट। इस इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य गोल है कि दुनिया भर में शुगर के मार्केट को प्रमोट किया जाए। शुगर रिलेटेड जो मेजर कंट्रीज हैं उनके बीच में कंसेंसस डेवलप किया जाए रिगार्डिंग शुगर प्रोडक्शन सप्लाई इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये गोल है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का। न्यूज़ ये है कि भारत को बनाया गया है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन। Government of India has been given a chairmanship of International Sugar Organization for year 2024. शुगर प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इंडिया हैज नाउ बिकम लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। बोर्ड वर्क फॉर रिवीजन पर्पस दे रखा है हमने, याद कर लीजिए, पीटी में आ सकता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर इज इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए, पीडीएस सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। पीडीएस इटसेल्फ इज नॉट एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। बाकी दोनों करेक्टली मैच नहीं है, बिकॉज प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी इज ब्लू बॉक्स एंड एमएसपी is amber box. And purple economy is economy that recognizes importance of care work. That's all from our side for today. Thanks for watching.